Well, if you're starting up your coding journey or if you are building any project, so let me be very clear. Git GitHub ऐसे टर्म्स इनसे आप कभी एस्केप नहीं कर सकते. ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेक इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं. एंड इफ यू बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, सो यू मस्ट नो हाउ टू यूज दीज टूल्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स में आप इन टूल्स को बेस्ट वे में यूज करना सीख सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको गिट गिटहब के वो सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिससे आपका ये टॉपिक 60 to 70% कवर हो जाएगा. गिट इंस्टॉलेशन, सेटअप, न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना गिटहब में, उस रिपोजिटरी को क्लोन करना, गिट स्टेटस, कमिट, push, add, and whatnot. And believe me, that is all what it needs to get started using these tools. Beginner हो, zero knowledge, don't worry. After this crash course, आप Git GitHub को real world में use करना सीख जाओगे confidently. Alright, so if you are ready to learn Git GitHub in the most practical way possible, then let's get right into it. Okay, then so let's get started. Let's start with what is Git and GitHub. Git basically, it is stated as a version control system. Git basically एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मशीन में प्रेजेंट होता है एंड आप कोई भी अपने कोड बेस में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन योर कोड बेस, उसके वो जितने भी चेंजेस है, आपने जो भी उसमें एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, उसका वो ट्रैक रखता है. व्हाट आई मीन बाय दिस इज, से फॉर एग्जांपल आपने कुछ न्यू एक फाइल ऐड किया अपने कोड बेस में, आपने कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ चेंजेस किए, आपने कुछ फाइल को डिलीट किया, आपने कोई फाइल मॉडिफाई किया, एंड ऑल दीज एक्शंस को गिट ट्रैक रखता है. इन सारे एक्शंस का गिट जो है हिस्ट्री ट्रैक करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. लाइक आप से फॉर एग्जांपल आप कोई भी वर्जन में आप लाइक अनडू करना चाहते हो, और इफ यू वांट टू गो टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ योर कोड बेस, सो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट में जंप कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो दिस इज बेसिकली गिट. Git was developed by Linus Torvalds, the same guy who developed Linux. And now let's talk about what is GitHub. Okay, GitHub एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप इन्हीं सारे आप अपने कोड बेसिस को, आपके सारे हिस्ट्री को एंड एवरीथिंग आप इन्हें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हो. सो यू कैन कंसिडर दिस GitHub एज बेसिकली द डेवलपर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड द डेवलपर्स पोर्टफोलियो एज वेल, जहां पर डेवलपर के जितने भी उसने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, जो भी उसका प्रोजेक्ट है, जितने भी कोड बेसिस है, वो अगर पब्लिकली या फिर प्राइवेटली अगर वो कहीं स्टोर करवाना चाहता है जिससे वो कहीं से भी और कैसे भी एक्सेस कर सके, सो GitHub इज द वे where you can store all your code bases and projects. So this much theory is enough to know about what is Git and GitHub. Now let's move on and install and configure Git in our local machine. So to use Git, and जैसे कि मैंने कहा कि Git एक सॉफ्टवेयर है, so इस सॉफ्टवेयर को you have to download it. Okay, so you can follow up this link जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया git-scm.com. या फिर you can like search for Git here. Okay, the first link will appear, will be that link only. Okay, you can okay, if you have a Windows machine, so you can download, so click here, download for Windows, and click here to download here, and your download will start. Okay, so once the executable file has downloaded, just click on it and just do next, and the Git software will be downloaded in your system. Okay, so now once you have successfully downloaded software in your local machine, so basically you need to configure your GitHub account in your local Git software here. So before that, I would urge you to go to github.com, create an GitHub account. Okay, like it's very straightforward. ठीक है, simply आप अपना email दोगे आप यहाँ, and make sure this is ये email आप access रहे आपका ये email का. Just give your email, password, and एक user name, एक unique user name आपको यहाँ provide करना है, and select your region and all, and then you're good to go. Your GitHub account is ready. And how will you find your GitHub account? So जैसे आप GitHub account create करने के बाद आप इस पेज में आओगे, so you can at the top right side you can find your logo. Just click on it and you can see the profile section. आप जैसे इसमें क्लिक करोगे, so you can see this URL section here. So basically जो आप यूजर नेम दोगे वो यूजर नेम यहाँ पर आ जाएगा after the slash. So this is your GitHub profile here basically, and all your repositories which you are going to create, वो इस रिपोजिटरी सेक्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको, या फिर आप यहाँ टॉप राइट में आइकन में भी क्लिक करके यहाँ पर आप रिपोजिटरी सेक्शन में क्लिक करके जा सकते हैं. So definitely then you will find all your repositories here, and yeah, maybe in your case आपने अगर एकदम न्यू अकाउंट आपने क्रिएट किया तो आपको एकदम एम्प्टी दिखेगा ये पेज, बट या होल्ड ऑन फॉर अ बिट, आप अपना फर्स्ट रिपोजिटरी इसी वीडियो के साथ क्रिएट करने वाले. ओके, Alright, if you want to check कि आपके लोकल मशीन में Git सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, so I would urge you to just search for a terminal in your machine. Just search for it, and आप यहाँ पर आके सिंपल ये कमांड लिख सकते हो, git hyphen hyphen version. Okay, hit enter, and if you will find something like this कि git version कुछ कुछ लिख के आएगा अगर,
then you're good to go. All right, so now it's time to configure your GitHub account, which you have created just now, to your local Git software. Okay, बेसिकली जैसे आप Git डाउनलोड करते हो, जो Git सॉफ्टवेयर रहता है, वो एक Git एक टर्मिनल, एक Git एसोसिएटेड एक टर्मिनल वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है. Basically, we call it as Git Bash. Okay, it is a bash, a terminal. So you just search for Git Bash here. Okay, in your machine. जस्ट क्लिक इट एंड जस्ट ओपन इट. ऐसा कुछ आपको एक विंडो ऐसा आपको कुछ ऐसा ओपन होता हुआ दिख जाएगा. या दिस इज अ टर्मिनल एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पर आपको कुछ बंच ऑफ कमांड्स रन करने हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइड्स में भी मैंने लिखे हैं. जस्ट ये दो कमांड्स आपको रन करने हैं. दिस लास्ट कमांड इज फॉर जस्ट चेकिंग कि आपने सब चीजें सही की है कि नहीं. ओके, सो फर्स्ट कमांड बिंग आप अपना जो गिटहब का यूजर नेम है आप उसे वो सेट करते हैं. एंड आपके गिटहब से एसोसिएटेड आपने जो मेल आपने रजिस्टर किया था आपको वो यहाँ पर एंटर करना है. एंड दैट्स ऑल. आफ्टर रनिंग बोथ ऑफ दिस कमांड्स आप फाइनली इस कमांड को रन कर सकते हो. एंड यू कैन चेक एंड कंफर्म कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है वो रजिस्टर हुआ कि नहीं. सो जस्ट रन दिस कमांड रियली क्विकली. git config hyphen hyphen list. So you can find all your credentials. यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपके सारे credentials. आपको यहाँ पर user dot email and user dot name में आपका यूजर नेम एंड आपका मेल एसोसिएटेड दिख जाएगा. सो वंस यू सी दिस यू आर गुड टू गो. आपके लोकल सिस्टम में जो गिट आपका गिटहब अकाउंट है वो कॉन्फ़िगर हो गया. एंड नाउ इट्स बेसिकली टाइम टू कॉन्फ़िगर योर वीएस कोड. आई होप सो वीएस कोड आप यूज कर रहे होंगे. सो इफ यू डोंट हैव विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर इन योर लोकल मशीन, सो just search for Visual Studio Code and please download this particular code editor from here. So basically क्या होता है, फर्स्ट टाइम जैसे ही आप git इंस्टॉल करते हैं एंड git को कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे ही VS कोड में जैसे ही फर्स्ट टाइम आप एक कमांड जो git पुश करेंगे, जब आप कमांड रन करेंगे, आप अपने कोड फाइल्स को जब पुश करने चाहेंगे, बेसिकली व्हाट यू डू, इमेजिन दिस इज योर लोकल मशीन. ओके, आप अपने लोकल मशीन से जो गिटहब के सर्वर्स है, ओके, गिटहब के यहाँ पर जो गिटहब के सर्वर्स है, यहाँ पर आप अपना जो कोड बेस है वो आप पुश करते हो. सो या दिस स्टेप इज कॉल्ड पुशिंग. ओके, तो आप अपने जो भी एक आपने जो भी कोड लिखा आप गिटहब के सर्वर में पुश करते हो. सो वाइल पुशिंग फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम आप जब कर रहे होंगे, क्योंकि बिकॉज अगर आपका न्यूली आपने गिट ऐड किया एंड गिटहब आप यूज कर रहे हैं, सो फर्स्ट टाइम इट विल आस्क टू साइन अप विथ गिटहब. ओके, बेसिकली यू आर कनेक्टिंग योर गिटहब. सी एज यू कैन सी VS कोड विल नाउ लिंक्ड टू योर गिटहब अकाउंट. आपका जो गिटहब अकाउंट है और आपका जो VS कोड है आपके लोकल मशीन में वो लिंक हो जाएगा. सो दिस इज ओनली अ वन टाइम प्रोसेस. ओके, आप फर्स्ट स्टेप में से करेंगे, देन उसके बाद फॉरएवर आपके सिस्टम में गिट एंड VS कोड आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन एंड नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट योर फर्स्ट रिपोजिटरी. ओके, सो जस्ट आप github.com ओपन कर लीजिए. ओके, एंड यू कैन सिंपली गो टू दिस रिपोजिटरी सेक्शन है. सो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन बटन, ये न्यू करके आपको यहाँ पर दिखेगा. just click on it and यहाँ पर it will ask to enter your repository name. So like enter any name you want, like my first repository or something like that. So I will name it as test repo and then yeah, just leave everything as it is. Okay, description and all आप अगर देना है so you can give it. But okay, and now here's an option to you कि आपको इसका visibility choose करने को दिया है option कि if you want to keep this particular repository public, and by public it means कि anyone can view your code base, your repository, and if you created it as private तो सिर्फ आपके पास ही वो एक्सेस रहता है कि आप अपने कोड बेस को देख सकते हो. सो लेट्स कीप इट एज पब्लिक इन हियर एंड सिंपली क्रिएट करते हैं रेपोजिटरी को. एंड यू विल सी कि ये आपके यूजर नेम स्लैश आपका जो आपने रेपोजिटरी का नाम दिया था उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर आप देख सकते हो ये रेपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा. ऑलराइट, सो वंस यू हैव क्रिएटेड एनी रेपोजिटरी एंड आप चाहते हो कोई भी रेपोजिटरी को आप अपने लोकल मशीन में आप लाना चाहते हो, सो जस्ट सिंपली कम हियर एंड आपको ये HTTPS में ये आपको ये URL मिल जाएगा. जस्ट कॉपी दिस URL, ओके, और जस्ट क्लिक इन हियर and I would urge you to open your Visual Studio Code. Okay, so once you have opened your Visual Studio Code, so make sure कि ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिख रहा होगा. लाइक अगर आप एकदम ही इनिशियली आप एकदम स्टार्टिंग फ्रेशली आप अगर इसे स्टार्ट कर रहे हो, so make sure every time you open up a folder in your Visual Studio Code, this window. Okay, so to do that, always just come to your desktop in here and always create a new folder. Okay, like or maybe कोई existing folder अगर आपके पास हो तो, and just give it a name. Okay, anything like my coding folder, something like that. And make sure you open your Visual Studio Code in this particular folder basically. So how will you do it? अगर आपने properly सब install किया है, so open this folder, like any folder जिसमें भी आप अपना Visual Studio Code वहाँ इस folder को Visual Studio Code में open करना चाहते हो. So just right click and go to this show more options. आपको यहाँ open with code ये Visual Studio Code का icon के साथ दिख जाएगा. You can click this or you can simply come in here, just click in this open folder, or simple you can go to file, open folder, and then
navigate to your folder which you want to open, that is this my coding folder. Select the folder and आपका Visual Studio Code उस पर्टिकुलर फोल्डर में ओपन हो जाएगा। एंड देन नाउ आप यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करेंगे, आप जो भी नया फाइल क्रिएट करेंगे, से फॉर एग्जांपल hello डॉट cpp, और कुछ भी आप फोल्डर क्रिएट करेंगे बाय न्यू फोल्डर, अगेन फोल्डर। सो आपको जितने भी यहाँ पर आप इस अपने विजुअल स्टूडियो कोड वर्कस्पेस में अपने यहाँ पर चेंजेस करेंगे, वो इस फोल्डर में ऑटोमेटिकली वो आते रहेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू डू। तो बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट को, कोई भी रिपोजिटरी को आपने जो बनाया या कोई भी हो, आपको उसे अपने मशीन में अगर लाना है, सो यू कैन जस्ट डू दिस। ओके, जैसे आपने वीएस कोड ओपन किया, सो यहाँ पर आप ये थ्री डॉट्स देख रहे होंगे, या फिर आप कोई भी व्यू में हो आपको ये टर्मिनल दिख रहा होगा। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस टर्मिनल एंड क्लिक टू दिस न्यू टर्मिनल। ओके, और सिंपल बनाते हुए आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह में आके आप यहाँ पर ऐसे ड्रैग अप भी कर सकते हो। सो आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ आई वांट यू टू रन दिस कमांड git clone, एंड आपने जो यूआरएल कॉपी किया था आप उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर इट, एंड इट विल से कि ओके क्लोनिंग इनटू रिपोजिटरी, और ये सिंपल एक वार्निंग दिया कि ओके आपका जो रिपोजिटरी है वो एम्प्टी है। ऑब्वियसली हमारा एम्प्टी है रिपोजिटरी अभी। सो यू कैन सी एक यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो गया, एंड या दिस इज द फोल्डर, दिस इज द ओनली फोल्डर जो आपने गिटहब अकाउंट में अपना क्रिएट किया है, वही फोल्डर यहाँ पर फेच होकर यहाँ पर आ गया है। ऑब्वियसली इनिशियली इट इज एम्प्टी बिकॉज कुछ भी इसके अंदर कोड नहीं है। अभी हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को फिल करना एंड प्रॉपर एक कोड बेस क्रिएट करना। Alright, so before moving further, I would urge you to enable this auto save option in your Visual Studio Code. Like कुछ भी आप changes करोगे तो बार बार उस change को save करने के लिए आपको control S बार बार करना होगा। So to get rid of this, simple just enable this option in your auto save option in your Visual Studio Code. Just come in here to this gear option, go to this settings, come here and search for auto save. Okay, this files auto save option will appear. Just click on here and select after delay. Now you're good to go. आप अभी जितने भी आप changes करोगे, so it will keep automatically saving. आपको बार बार control S करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो हमने सक्सेसफुली हमारे एक रिपोजिटरी को हमने हमारे मशीन में क्लोन कर दिया है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द इम्पोर्टेंट पार्ट है, द थ्री कमांड्स एंड जो गिट स्टेट्स की हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने आपने देखा होगा, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले। ओके, आई विल टॉक अबाउट दिस बोनस कमांड। ओके, सो पहले तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ नाउ द थिंग इज कि आपने आपके पास आपके मशीन में एक आपका रिपोजिटरी है, एक आपका फोल्डर है। अब नाउ यू वांट कि उसमें आप चेंजेस परफॉर्म करो, एंड उसमें बेसिकली आप कोड बेस मेंटेन करो, उसमें आप कोड करो, कुछ फाइल्स ऐड करो, रिमूव करो, अपडेट करो, एंड यू हैव टू परफॉर्म ऑल दीज एक्शंस। ओके, सो वो एक्शंस तो आप परफॉर्म कर लोगे, बस बेसिकली गिट यूज करने का सेंस वहां ही बनता है जहां जहां आप इन पर्टिकुलर एक्शंस का ट्रैक रख सको, इन पर्टिकुलर एक्शंस को आप पुश कर सको गिटहब में, एंड आप अपने जो बेसिकली रिपोजिटरीज यहाँ पर आप स्टोर करें। जैसे कि आपने देखा मैंने टेस्ट रिपो बनाया था, तो इस रिपोजिटरी में बेसिकली आपके सारे जो आप कोड करोगे, वो आप सारे कोड आप यहाँ पर चाहते हो कि यहाँ पर वो लिस्ट हो जाए, सारे कोड यहाँ पर आ जाए। तो फॉर दैट देयर इज दिस टर्म जो मैं बोले जा रहा हूँ, पुश। सो बेसिकली आपको आपके लोकल मशीन से, जैसे कि मैंने ये डायग्राम भी दिखाया, आपको आपके लोकल मशीन से आपको आपका जितना भी वो कोड बेस आपने जो किया है वो आपको पुश करना पड़ता है टू द गिटहब, गिटहब सर्वर्स पे, बेसिकली गिटहब पे पुश करना पड़ता है। देन ओनली योर कोड बेस विल अपीयर ऑन दैट पेज। सो फॉर दैट आपको कुछ कमांड्स यहाँ पर रन करने पड़ते हैं। ओके, एंड इट इज नथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, जस्ट दीज थ्री कमांड्स, ये थ्री मेजर कमांड्स होते हैं, बस आपको यही समझने, एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। आप इन थ्री कमांड्स को यूज करके आप प्रॉपर गिट गिटहब यूज कर सकते। पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं गिट के, ये समझाना चाहूंगा, एंड साइमल्टेनियसली आई विल जंप बैक टू दीज कमांड्स एंड आपको मैं समझा दूंगा। ओके, सो व्हाट इज दिस अनट्रैक्ड थिंग? होता क्या है कि इफ यू विल गो, if I take you to the code base here, so just what I will do कि यहाँ इस particular folder के अंदर I will create a new file. Okay, so let's name it as file 1.txt. Okay, let's name it as file 1.txt. मैंने एक फाइल क्रिएट किया as you can see, और आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, और cpp और समथिंग C प्लस फाइल या फिर कुछ, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये फाइल बनाया। सो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो एक यू करके यहाँ एक, वैसे तो प्रॉपर कलर्स आ गए हैं, एंड प्रॉपर यहाँ पर यू करके इंडिकेट हो रहा है कुछ। बेसिकली दिस यू इज स्टेटिंग हियर ये फाइल अनट्रैक्ड है। व्हाट इज मेंट बाय अनट्रैक्ड? नाउ यहाँ पर क्लियरली इट इज रिटन कि बेसिकली आपने आपके कोड बेस में एक न्यू फाइल क्रिएट किया है, एंड गिट डजंट नो अबाउट इट येट। ओके, मीन्स जैसे गिट को आपने अपने लोकल में क्रिएट कर दिया, लेकिन आपको अभी गिट को बताना पड़ेगा कि ओके आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल्स। सो इस चीज को बताने के लिए यू हैव टू रन दिस कमांड, दैट इज git add and that particular file name. So
जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ वहां पर लिखा था, मैंने जो कमांड बताया, यू हैव टू बी इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्लियर कमांड करके आप अपना पूरा टर्मिनल क्लीन कर लीजिए। देन आई वुड अर्ज यू टू राइट दिस कमांड ls, ठीक है, दीज आर बेसिक टर्मिनल कमांड्स, बेसिक बैश कमांड्स। सो आप सिंपली ls लिखिए, आप एंटर करोगे। सो आप बेसिकली आप जो भी फोल्डर में रहोगे उस फोल्डर के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, बेसिकली फोल्डर्स हैं एंड जितने भी फाइल्स हैं, वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा बाय दिस वन कमांड दैट इज ls। सो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आप टेस्ट repo फोल्डर के अंदर नहीं है। हमारा मेन जो गिट फोल्डर है, गिट वाला जो गिटहब का जो हमने वहां पर फोल्डर क्लोन करके लाया है, वो ये टेस्ट repo है, ठीक है। सो यू हैव टू मूव टू दिस पर्टिकुलर फोल्डर। सो आई वुड अर्ज यू to write this command now, cd, okay। Now what this cd commands do, cd command is basically change directory, okay। तो आप git github crash course इस पर्टिकुलर आप फोल्डर में, अभी इस फोल्डर में हो। नाउ आई वांट टू मूव फ्रॉम दिस फोल्डर टू दिस फर्दर फोल्डर दैट इज टेस्ट repo। इसके लिए मैं कमांड लिखूंगा cd दैट इज चेंज डायरेक्टरी एंड द नेम ऑफ दैट फोल्डर टेस्ट repo। एंड ऐसे कि आप देख सकते हो कि आप अगर प्रॉपर न्यू वर्जन में हो, आप cd लिखोगे एंड टीई बस स्टार्टिंग के 1 और 2 कैरेक्टर्स लिखो एंड आप टैब प्रेस कर दो, सो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है, ओके। यू एंटर इट एंड नाउ यू विल सी कि यू आर इन दैट करेक्ट फोल्डर, ओके, क्लियर। यहाँ पर आप अगेन यू कैन बेसिकली राइट ls। तो आप देख सकते हो कि जैसे आपने ls किया तो आप देख सकते हो कि file1.cpp आ गया, जैसे कि क्योंकि file1.cpp आ गया क्योंकि मैंने वो फाइल इस पर्टिकुलर फोल्डर में क्रिएट किया, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फर्दर। जैसे कि आपने देखा कि मैंने वो जो फाइल क्रिएट किया तो वो अनट्रैक्ड हुआ, बिकॉज हमने सिर्फ वो फाइल हमारे लोकल मशीन में क्रिएट किया है, गिट डजंट नो अबाउट इट। अब हम कैसे करेंगे, गिट को हम कैसे बताएंगे कि जस्ट ट्रैक दिस फाइल, ओके। मैंने ये फाइल हमारे कोड बेस में क्रिएट किया है, ट्रैक दिस फाइल। सो यू कैन राइट दिस कमांड दैट इज git स्पेस add स्पेस डॉट, ओके। नाउ अब ये डॉट मैं इसलिए दे रहा हूँ, बेसिकली डॉट आप दोगे तो डॉट से मतलब आपने जितने भी, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फाइल 2.py कर देता हूं, ओके। सो यू कैन सी कि ये भी अनट्रैक्ड हो जाएगा, एज यू कैन सी, क्योंकि गिट को नहीं पता इन दो फाइल्स के बारे में। सो आप गिट एड डॉट करोगे तो डॉट करने से सारे जितने भी अनट्रैक्ड फाइल्स है वो ट्रैक्ड हो जाएंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल आप गिट एड आप वो स्पेसिफिक फाइल का नाम दोगे तो सिर्फ वो स्पेसिफिक फाइल ही ट्रैक होगा। सो ओके, इन दिस केस लेट्स गिव इट एज गिट एड डॉट। तो जैसे आप इस पर्टिकुलर कमांड को रन करोगे, यू कैन सी कि कलर भी थोड़ा, कलर कोडिंग भी थोड़ा चेंज हो गया है एंड यहाँ पर यू से ए हो गया है। ए इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हियर द ट्रैक्ड स्टेज। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर जो अनट्रैक्ड के बाद जो मैंने लिखा था ट्रैक्ड की, तो अभी पता चल गया है कि चेंजेस आर एडेड, लाइक चेंजेस आपने कुछ किया, वो चेंजेस ऐड हो गया है एंड नाउ गिट इज वॉचिंग द फाइल, गिट नाउ नोस कि आपने ये चेंजेस किया है। सो यहाँ पर वो यू से यहाँ पर ए हो जाएगा एंड यू कैन ऑब्वियसली यू कैन सी कि मैंने गिट एड कमांड रन किया, उसके बाद ये कलर चेंज हो गया एंड योर फाइल इज ट्रैक्ड नाउ, ओके। एंड ऑल्सो ये एक स्टेज स्टेट भी होता है कि बेसिकली दिस स्टेट रिप्रेजेंट्स की दिस इज द रेडी टू कमिट स्टेज, कि बेसिकली आपके जो भी आपने चेंजेस थे वो आपने परफॉर्म कर लिया, गिट को पता भी चल गया कि आपने चेंजेस परफॉर्म किए। नाउ गिट इज रेडी टू सेव दिस चेंजेस, आपके हिस्ट्री में प्रॉपर सेव करने के लिए ये गिट रेडी हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेज कम्स द कमिटेड स्टेज। बेसिकली नाउ यहाँ पर जो सेकंड कमांड था द गिट कमिट कमांड, ओके। इस कमांड से आपके बेसिकली जो भी चेंजेस थे, जो भी आपने चेंजेस परफॉर्म किए, गिट को पता भी चल गया। बाय रनिंग दिस गिट कमिट कमांड, इस कमांड को रन करने से ये सब जो भी आपने चेंजेस किए हैं ये परमानेंटली आपके हिस्ट्री में सेव हो जाएंगे। सो जस्ट कम हियर एंड रन दिस कमांड गिट कमिट एंड यहाँ पर आपको स्पेस में आपको -m लिखना पड़ता है, -m रिप्रेजेंटिंग हियर द मैसेज एंड आपको इस स्ट्रिंग में ऐसा आपको कुछ एक मैसेज डालना पड़ेगा, ओके। जस्ट टाइप इन -m देन स्पेस, देन आप एक ऐसे स्ट्रिंग डबल कोडेड स्ट्रिंग आप एंटर करो एंड यू जस्ट टाइप इन अ सिंपल मैसेज हियर, एनीथिंग लाइक माय फर्स्ट कमिट, समथिंग लाइक दैट, ओके, एंड हिट एंटर। जैसे आप एंटर हिट करोगे यू कैन सी क्लियरली कि आपके वो कलर्स भी हट गए हैं एंड बेसिकली यू कैन से 2 फाइल्स चेंज्ड एंड या एवरीथिंग, ये सब सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। बेसिकली दिस इज डिनोटिंग आपका जितने भी आपने चेंजेस किए, जो भी आपने चीजें परफॉर्म किया अपने कोड बेस में, वो चेंजेस सारे हिस्ट्री में परमानेंटली सेव्ड हो गए हैं। फर्स्ट लेट्स चेक कि हमारे गिटहब में हम जाके चेक करते हैं हमारे रिपोजिटरी में कुछ भी लाइक चेंजेस आया कि नहीं। इफ यू गो है, इफ यू कम हियर, देख सकते हो अभी तक मतलब अभी तक वही इंटरफेस लाइक दिखा रहा है, कुछ चीजें चीजें चेंज नहीं हुआ। वो इसलिए बिकॉज दिस इज ओनली द कमिटेड स्टेज, मतलब गिट ने आपके चेंजेस को ऑब्जर्व कर लिया बाय आफ्टर रनिंग द ऐड कमांड।
आफ्टर रनिंग द कमिट कमांड, गिट ने आपके जो भी चेंजेस है वो रेडी है, वो सेव हो गए हैं, आपके हिस्ट्री में सेव हो गए, गिट ने हिस्ट्री में सेव कर लिया है प्रॉपर आपका जितने भी आपने चेंजेस किए हैं। बट नाउ आपको फाइनल एक कमांड रन करना पड़ता है, दैट इज द पुश कमांड, जिससे आपका जो ऑब्वियसली एज यू कैन सी आपका जो भी जितना भी आपका कोड बेस है प्रॉपर आपके ये गिटहब अकाउंट में आ जाएगा। ओके, so for that now let's finally run this command, the push command. Okay, so okay, now let me tell you one thing here कि आप जब फर्स्ट टाइम, okay, just make sure this कि आप फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम आप जब आप पुश कमांड कर रहे होंगे, सो इंस्टेड ऑफ सिंपल राइटिंग गिट पुश आपको थोड़े और एक्स्ट्रा टर्म्स लिखने पड़ते हैं, दैट इज गिट पुश हाइफन यू, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एज बेसिकली अपस्ट्रीम आपको सेट करना पड़ता है। दिस इज सम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, मैं सिंपल वे में बोलूं, आपको सिंपल वे में समझाऊं, आपको ये फुल कमांड लिखने से लाइक द फर्स्ट टाइम याद रखना, मेक श्योर ये जो आप गिट पुश का ये जो आप प्रॉपर फुल जो बड़ा सा कमांड आप लिखेंगे, ये आप तभी लिखेंगे जब आप फर्स्ट टाइम पुश कर रहे होंगे। व्हाई? बिकॉज आफ्टर दिस आपको लिखना पड़ेगा गिट पुश ओरिजिन मेन। ओके, आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन कि इसके बाद आप इस कमांड को फर्स्ट टाइम रन करने के बाद आप इसके बाद जितने भी बार पुश करोगे देन आपको सिर्फ और सिर्फ गिट पुश लिखना पड़ेगा, देन यू डोंट हैव टू राइट गिट पुश ओरिजिन मेन, और बेसिकली ये मेन सब ब्रांचेस का all these are the advanced topics. Okay, I'm making this simpler for you कि फर्स्ट टाइम जब आप रन पुश करो, सो आप सिंपली राइट दिस गिट पुश ओरिजिन मेन, ये फुल कमांड आप रन करो, एंड एज यू कैन सी आपका जो कोड बेस है वो प्रॉपरली आपके गिटहब अकाउंट में पुश हो जाएगा। सो टू वेरीफाई दिस लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर कोड बेस। ओके, एंड यहाँ पर जस्ट सिंपली गो टू योर रिपोजिटरी सेक्शन हियर, रिफ्रेश इट हियर, एंड हियर यू कैन सी कि प्रॉपरली आपका जो जितने भी आपने जो फाइल 1.cpp एंड फाइल 2 बनाया था वो प्रॉपरली यहाँ पर आ गया, एंड एज यू कैन सी वो जो हमने जो मैसेज दिया था वो बेसिकली मैसेज यहाँ पर शो होता है, यहाँ पर डिस्प्ले होता है बेसिकली वो मैसेज। ओके, वेल, सो कांग्रेचुलेशंस दैट यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ रिपोजिटरी, आपको क्लोन करना आ गया, यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स लाइक सच एज आप जितने भी ये स्टेट्स होते हैं, एंड बस एक लास्ट एक स्टेज बचा है आपको बताने को, दैट इज मॉडिफाइड स्टेज या फिर स्टेट। ओके, एंड व्हाट इज दिस नाउ, भाई एज द नेम सजेस्ट एज वेल कि जैसे सिंपल देखिए आप ये फाइल है, ठीक है, आप जैसे ये फाइल 1 फाइल 2 है, आप देख सकते हैं कुछ इसमें लिखा नहीं था, बट से फॉर एग्जांपल पाइथन या फिर ये लाइक सी प्लस प्लस था, तो जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहा हूँ, लाइक से फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ओके, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो पहले जैसे यू दिखाता था, ए दिखाता था, यहाँ पर इट्स सेइंग एम, एंड ऑब्वियसली दिस एम स्टैंड्स फॉर मॉडिफाइड है, मतलब कुछ प्री एग्जिस्टिंग फाइल रहेगा, प्री एग्जिस्टिंग कोड बेस रहेगा, आप उसमें कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करोगे, कुछ भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करोगे, सो वो मॉडिफाइड दिखाएगा यहाँ पर आप बेसिकली, या दिस मॉडिफाइड यहाँ पर ये बताता है कि आपने जो भी वो प्री एग्जिस्टिंग कोड बेस था उसमें आपने कुछ चेंजेस परफॉर्म किया, आपने कुछ मॉडिफाई किया। ओके, नाउ हियर लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल हियर, और किसी फोल्डर में भी आप बना सकते हो, लेट्स गिव इट एज फाइल 3.cpp। सो नाउ द क्वेश्चन इज टू यू कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, यू होना चाहिए, ए होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज यू, बिकॉज ये जो न्यू फाइल हमने क्रिएट किया ये अनट्रैक्ड है, अभी गिट को इसके बारे में नहीं पता, वी नीड टू अगेन गिट ऐड, ठीक है, देन वी नीड टू गिट कमिट मैसेज देना है, देन वी फाइनली नीड टू गिट पुश। सो देखा ये वन एंड ओनली ये 3 कमांड्स हैं, इन 3 कमांड से आप पूरा अपना गिटहब का फाइनली जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, एंड इन 3 कमांड से आपका 80 to 90% ऑफ आपका जो काम है वो हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली नाउ इट्स टाइम टू टेल यू अबाउट दिस, ये जो बोनस कमांड मैंने आपके लिए लाया था, द गिट स्टेटस कमांड। ओके, सो द नेम एज द नेम सजेस्ट एज वेल कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप अपने वापस टर्मिनल में आप अपने आइए। ओके, एंड देन रन दिस गिट स्टेटस कमांड। ओके, गिट स्टेटस कमांड से आप देख सकते हैं ना नाम से भी कि भाई गिट स्टेटस कमांड से आपका जो भी आपने चेंजेस परफॉर्म किया, जितनी भी आपने चीजें की है वो आप यहाँ पर स्टेट कर देगा। यू रन दिस गिट स्टेटस कमांड, और वो बता देगा कि अरे अच्छा आपने ये चीज ये फाइल्स मॉडिफाई किया है, आपने ये फाइल देखो, मैं जैसे अनट्रैक्ड फाइल्स की बात कर रहा था, अनट्रैक्ड फाइल्स मींस व्हाट कि अभी तक गिट को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सो नाउ वंस यू गिट ऐड, वंस यू रन दिस कमांड, जैसे आप ये कमांड रन करोगे देन अगेन रन दिस गिट स्टेटस कमांड। ओके, अब देख सकते हो कि प्रॉपर ऑल द फाइल्स आर ट्रैक्ड नाउ, एंड अभी वो रेड कलर से प्रॉपर ग्रीन हो गया, एंड नाउ बेसिकली इट इज रेडी टू। ओके, नाउ अगेन रन द कमिट कमांड हियर विद अ प्रॉपर मैसेज कि ओके मेड सम चेंजेस। ओके, कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो, एंटर इट, एंड एज यू कैन सी सारे कलर्स भी रिमूव हो गए। देन फाइनली एज आई सेड कि अभी भी आप अपने अगर आप अपने ब्राउजर में जाओगे और अपने
वो कोड में जाओगे, आप रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ फाइल अपडेटेड नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने पुश नहीं किया अपना कोड बेस। ओके, सो नाउ इन ऑर्डर टू पुश योर कोड बेस टू गिटहब, आपको सिंपली git push कमांड रन करना पड़ेगा। एंड नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू पुश, आपको वो git push u origin main लिखना पड़ता है, बट उसके बाद से you just have to write git push and just hit enter, and as you can see का जो कोड बेस है वो प्रॉपरली गिटहब में आ जाएगा। यू कम हियर एंड यू कैन रिफ्रेश दिस पेज एज वेल। तो आपका जो यहाँ आप दे सकते हैं, मैंने जो फाइल 3 क्रिएट किया वो आ गया, एंड प्रॉपर जैसे फाइल डॉट सीपीबी भी आप क्लिक ओपन करोगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। एंड या दैट्स इट। ऑलराइट, सो दिस इज इट। आपने लाइक इतना आपने अगर कवर अप कर लिया, आपने इतना आपको अगर समझ में आ गया, सो लाइक आपका लाइक 80 to 90% आपका काम आपका डन है by only using these three commands. Okay, you will make some changes in your code base. The first step is adding, the second step is of committing, and then the third step finally is to push your code to GitHub. Now let's move on to the next segment, इनिशियलाइजिंग अ लोकल गिट रिपोजिटरी। नाउ ये एक बेसिकली एक केस है, एक केस अराइज होता है। नाउ जैसे कि मतलब इस केस में आपने देखा, प्रीवियसली आपने देखा कि हमने हमारे गिटहब में जाके हमने एक रिपोजिटरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट किया, एंड देन हमने वो रिपोजिटरी को क्लोन किया टू आवर लोकल मशीन। बट व्हाट इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, से आपके पास एक एग्जिस्टिंग एक फोल्डर है, दिस वाज द टेस्ट रिपो। अब यहाँ पर से फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर से फॉर एग्जांपल लेट्स गिव एज सो एक नेम देते हैं, से फॉर एग्जांपल लोकल कोड। इस पर्टिकुलर फोल्डर अंदर मेरे पास कुछ से फॉर एग्जांपल कुछ न्यू कोड बेस है। ओके, पी वाई, ओके, ये कुछ है मान के चलो, देन ओके, और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फर्दर है। सो बेसिकली यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यहाँ पर कोई कलर कोडिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर लाइक सिंपल ये फाइल्स क्रिएट हो जा रहे हैं, कुछ भी अनट्रैक्ड या ट्रैक्ड यहाँ पर आ नहीं रहा है। दैट इज बिकॉज दिस पर्टिकुलर लोकल कोड फोल्डर यहाँ पर जो है ये आपका गिट ट्रैक्ड रिपोजिटरी नहीं है। मतलब गिट के द्वारा ये गिट सॉफ्टवेयर आपका इस पर्टिकुलर फोल्डर में वो इनिशिएटेड नहीं है। सो टू इनिशिएट इट आपको ये फर्दर कमांड रन करना पड़ता है, दैट इज गिट इनिट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग टू द कमांड पार्ट, सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर कोड बेस में आना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फोल्डर में आना पड़ेगा। गो टू दिस लोकल फोल्डर एंड यू कैन राइट क्लिक इन हियर एंड यू कैन सी दिस ऑप्शन ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं, सिंपली आप सिंपली डायरेक्टली उस फोल्डर में आ जाओगे। बट ओके, लेट मी शो यू ऑल द ऑप्शंस। ओके, जैसे कि आप से फॉर एग्जांपल इस एग्जिस्टिंग फोल्डर में थे, आपको ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको इस फोल्डर में जाना है। सो ओके, पहले तो आप ls करके देखो। ls करोगे तो ls से जैसे आपको पता था, आपको जितने भी वो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है सब लिस्ट हो जाएंगे। बट एज यू कैन सी आप तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में है ना, राइट, टेस्ट रिपो में। इसके फर्दर नहीं जाना है आपको इस केस में। आपको इस केस में इस पर्टिकुलर फोल्डर के पीछे आना है। सो फॉर दैट पीछे आने वाला कमांड यू हैव टू राइट अगेन, देखो cd से ही होगा सब, आपके डायरेक्टरीज चेंज cd कमांड से ही होंगे। बट को अगर बैकवर्ड जाना है, सो यू नीड टू राइट दिस डॉट डॉट। ओके, आपको बस ये डॉट डॉट आपको ये डालना पड़ता है। एंड आप एक बार मतलब ये एक पेयर ऑफ डॉट डॉट आप डालोगे, सो आप वन फोल्डर बैक जाओगे। एंड आफ्टर स्लैश अगर आप एक और एक डॉट डालो और एक पेयर ऑफ डॉट डालोगे तो यू विल गो 2 फोल्डर्स बैक। सो या दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द चेंज डायरेक्टरी कमांड। ओके, तो cd हमें एक फोल्डर बैक जाना है, सो गिव डॉट डॉट। नाउ अगेन डू ls एंड एज यू कैन सी आपका लोकल कोड एंड आपका जो लोकल कोड एंड टेस्ट रिपो आप ये वाले फोल्डर में आ गए, इनके ऊपर आ गए आप। एंड सो नाउ फ्रॉम हियर यू कैन मूव टू दिस लोकल कोड फोल्डर एंड सिंपली जैसे कि मैंने कहा cd लिखो, जस्ट राइट वन वर्ड और वन कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर एंड जस्ट हिट टैब। ओके, वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ यू कैन ls एंड यू कैन सी कि आप सक्सेसफुली इस लोकल कोड फोल्डर में आ चुके हो। सो यू कैन रन दिस pwd कमांड। नाउ व्हाट इज दिस pwd? pwd स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, इस पर्टिकुलर कमांड रन करने से आपको वो पाथ बता देगा कि आप इस पर्टिकुलर पाथ में हो, आपके इस पर्टिकुलर टर्मिनल में आप इस पर्टिकुलर पाथ में हो। सो या रन दिस pwd कमांड एंड आप दिख जाएगा आपको लास्ट में, आप जो आपका पाथ लास्ट में लिखा रहेगा आप उसी फोल्डर के अंदर हो। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। ओके, सो नाउ आवर केस वाज कि जैसे कि ये हमारा केस हो रहा है कि व्हाट इफ यू हैव अ कोड बेस ऑलरेडी इन योर लोकल मशीन, जो कि हमारा केस है। हम हमारे पास एक लोकल कोड नाम का फोल्डर है, या लोकल कोड के अंदर हमारे पास कुछ कोड बेस है एंड कुछ हमने कोड बेस यहाँ पर लिखा है, कुछ हमने यहाँ पर कोड लिखा है एंड ऑल। एंड देन इस पर्टिकुलर कोड बेस को आपको पुश करना है आपके गिटहब में। ओके, सो हाउ विल यू डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रन दिस git init कमांड। जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते थे कि यहाँ पर कुछ कलर कोडिंग नहीं आ रहा और कुछ भी हो नहीं रहा, बिकॉज git इज नॉट इनिशिएटेड फॉर दिस लोकल कोड
directory or folder. So you have to run this git init command. Make sure you are in the right directory. So you run this git init command, hit enter, and आप देख सकते हो कलर कोडिंग में सारे आ गए यहाँ, और यहाँ पर लिख के भी आ रहा है कि इनिशियलाइज्ड दिस एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन जो भी आपका पाथ है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कि प्रॉपर कलर्स भी आ गए एंड सारे अनट्रैक्ड फाइल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं प्रॉपर। नाउ व्हाट टू डू, एज सिंपल एज दैट। जैसे मैंने यहाँ पर पहले पहले स्टेप्स बताया आपको, आपको वही परफॉर्म करना है। ओके, आप सिंपली आप गिट स्टेटस कर सकते हो, देख चेक कर सकते हो, ओके सारी चीजें अनट्रैक्ड है एंड ऑल। गिट ऐड करो, गिट ऐड डॉट करने से आपके सारे फाइल्स ट्रैक्ड हो जाएंगे। ओके, आप देख सकते हो वहां पर कलर कोडिंग भी चेंज हो गया एंड अनट्रैक्ड से ट्रैक्ड हो गया। ओके, देन राइट द गिट commit command, enter a simple message like okay hello, ओके कुछ भी मैसेज एंटर कर दो। एंड नाउ हियर जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। यहाँ पर आप जैसे कि हम पहले करते थे, हम डायरेक्टली गिट पुश कर दिए, यहाँ पर आपको ये नहीं करना है। एक्चुअली द थिंग इज यहाँ पर हुआ क्या है, अब नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि आपने तो देखो, आपने तो यहाँ पर चलो वो तो कर दिया आपने, जैसे यहाँ पर ओके गिट इनिट किया, आपने गिट ऐड कर दिया, गिट कमिट कर दिया, बट सी दिस इज योर लोकल कोड बेस। ठीक है, ये आपका जो लोकल आपने देखो जो लोकल कोड हमने जो फोल्डर बनाया था, ये लोकल कोड फोल्डर है। ये तो चलो हमने लोकल में बनाया है, लेकिन इट इज नॉट येट कनेक्टेड टू आवर गिटहब। ओके, हमारे गिटहब अकाउंट में ये अभी तक कनेक्टेड नहीं है। सो बेसिकली वी हैव टू रिमोट बेसिकली हमें रिमोटली इसे कनेक्ट करना पड़ेगा टू आवर गिटहब अकाउंट। एंड डेफिनेटली एज यू नो दैट दिस इज अ न्यू रिपोजिटरी, दिस इज अ न्यू कोड बेस, सो उसके लिए आप वापस एक न्यू रिपोजिटरी बनाओगे। ओके, सो जस्ट नेम दैट रिपोजिटरी एज एनीथिंग दैट टेस्ट अगेन, दैट टेस्ट 2। ओके, एंड जस्ट ओके क्रिएट दिस रिपोजिटरी। ओके, आप इस पर्टिकुलर रिपो में आओगे तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि जैसे कि हमने किया, हमने एज यू कैन सो हमने जैसे कि आपने देखा कि हमने गिट इनिट कमांड रन किया, देन हमने गिट ऐड किया, गिट कमिट भी किया, देन नाउ वेट, इस पॉइंट से हमको क्या करना पड़ता है, ये ये फर्दर कुछ एक्स्ट्रा 2 कमांड्स रन करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर स्लाइड्स में भी मेंशन्ड है कि हमने गिट ओके आफ्टर गिट इनिट हमने गिट इनिट कर दिया, देन हमने गिट ऐड कर दिया, कमिट कर दिया। नाउ we have to run these 2 extra commands to connect our local code base to our GitHub account. That is git branch ये slash hyphen m main and then git remote add origin, वो particular repo URL. Then finally we need to push. So आइए इसे really quickly हम रन करते हैं, आते हैं यहाँ एंड देन आप सिंपली यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हो। जस्ट कम हियर एंड कॉपी दिस पर्टिकुलर command git branch hyphen m main. Okay, come here and paste this command, hit enter। ओके, अगेन कॉपी द नेक्स्ट कमांड। बेसिकली आपको ये लिंक को लाना पड़ता है एंड यू हैव टू connect that particular repository to your this code base। okay, hit enter and now after these 2 commands finally then git push। and जैसे मैंने आपको कहा था, the first time if you are pushing something, आप git push hyphen u origin main ये कमांड रन करोगे। ओके, as you run this command यू कैन क्लियरली सी कि फाइनली हमारा, आप यहाँ पर ब्राउजर में आकर चेक भी कर सकते हो। यू कम एंड रिफ्रेश योर पेज एंड यू कैन सी कि आपका जो कोड बेस है, यहाँ पर हमने जो लोकल में कोड बेस हमने बनाया था, वो प्रॉपरली हमारे गिटहब अकाउंट में भी यहाँ पर स्टोर हो गया। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट एक मैं आपको बोनस कमांड और बता देता हूँ। बेसिकली दिस इज द पुल कमांड। ओके, एज यू कैन सी टू ब्रिंग द चेंजेस फ्रॉम रिमोट टू योर लोकल मशीन। यहाँ पर थोड़ा कुछ रिवर्स यहाँ पर चीज होगी। देखो, अब तक आप डायरेक्शन देख रहे हो, तक हम क्या कर रहे थे, हमारे लोकल मशीन से जो भी हमने चेंजेस किए वो हम यहाँ पर पुश कर रहे थे हमारे गिटहब अकाउंट पे। सी फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा क्या कुछ केस हो सकता है, क्या कुछ ऐसा केस हो सकता है कि आपने कुछ यहाँ पर XYZ कुछ चेंजेस परफॉर्म किए, वो जो आपने रिमोटली आपने चेंजेस आपने अपने गिटहब अकाउंट में चेंजेस परफॉर्म किए, वो तो आपके लोकल मशीन में आए नहीं है। सी फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये चीज पॉसिबल, कंप्लीटली पॉसिबल है। जैसे आपका यही जो कोड बेस था, जैसे टेस्ट2 रिपोजिटरी था, कोई जो न्यू कोड डॉट पी फोल्डर था, आप क्लिक करो, आप देख सकते हो यहाँ, ये देखो ये कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो फॉर आई इन रेंज, ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है। ओके, आई कैन रियली एडिट दिस एज वेल। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप एडिट का ऑप्शन रहता है, सो एडिट दिस फाइल। मैं आपसे फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पर एडिटिंग कर सकता हूँ। ओके, आई एम लर्निंग गिट एंड गिटहब फ्रॉम शोडेप्स। ओके, सो जैसे ये देख सकते हो, आपने ये किया। अब आप देखो यहाँ पर आपको आपने गिटहब अकाउंट पे आपने चेंजेस परफॉर्म किया, आपको सिंपली यहाँ पर कमिट चेंजेस करना है। वो यहाँ पर जो भी आपको मैसेज, जैसे वहां पर हम जो मैसेज लिखते थे, आपको वो मैसेज, अगर आपको जो भी मैसेज लिखना है आपको वो लिखना है। ओके, देन सिंपली ओके सिलेक्ट दिस ऑप्शन, कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच, देन कमिट चेंजेस। आपको वो ऑटोमेटिकली, बेसिकली आपने यहाँ पर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस GUI में आपने सब चेंजेस किया, पीछे जो कमांड्स रन हुआ वो 3 कमांड्स से रन हो रहा है, गिट ऐड, कमिट एंड देन पुश।
एंड देन फाइनली आप ये टेस्ट 2 में आओगे तो आप देखो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आपका जो आपने ये जो कमिट मैसेज किया था एंड बेसिकली आपने जो भी चेंजेस परफॉर्म किए थे वो यहाँ आ गया। लेकिन नाउ हियर्स द कॉन्सेप्ट कि इफ यू गो टू योर लोकल मशीन हियर, आप क्लियरली आप रिमूव भी कर दो आप। ओके, सो प्रेस F1 इन योर कीबोर्ड एंड देन सर्च फॉर रीलोड विंडो। तो आप ये जो रीलोड विंडो ये आएगा, आप इसे भी क्लिक कर सकते हो फॉर योर सेटिस्फैक्शन कि आपने विंडो भी अपना रिफ्रेश कर लिया है। लेकिन लेट्स गो टू दिस न्यू कोड फोल्डर एंड यू कैन सी कि भाई चेंजेस तो आए नहीं, जो भी चेंजेस वहां पर हमने किए वो यहाँ पर नहीं आया। So for this we have to run this command, that is the git pull command. Okay, so you need to write git pull origin main here. As you write this command and as you enter it, you can see वो आपने क्लियरली देखा कि वहां पर जितने भी आपने चेंजेस परफॉर्म किए थे वो आपके लोकल मशीन में पुल होके आ गए। सो दिस इज कॉल्ड पुल, वहां से आपने पुल किया चेंजेस को। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन देयर, and subscribe to Shubh Devs for such more practical and beginner friendly tech content.